उतना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। शाम के टाइम पे बिजी भी होता है इंसान कभी यस कभी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, और इसमें यही कहा है कि ये जो है वैज्ञानिक प्रार्थना जो है हमारी मस्तिष्क और चेतन और अवचेतन दोनों के स्तरों के बीच की वो ऐसी सामंजस्य, यानी दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो आपका दोनों ऐसे नहीं कि ये मानेगा वो नहीं बोलेगा। जैसे आज मैं बोलूंगी मैं तो आज 10 करोड़ कमाऊंगी एक दिन का, बट मेरा कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ी ना बोलेगा कि यार तू भी तो 5 ही हजार नहीं पर डे कमा रही। तो वो सामंजस्य बात सिर्फ, नेटवर्क में हाँ, कुछ बात दिक्कत सिर्फ हो उतनी ही करनी है जितनी की हमारा दिल और दिमाग और सारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड माने। अगर हम रोज 4,000 कदम चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैं कल से 5,000 या 6,000 कदम चलूंगी। अगर मैं ये बोलती हूँ 4,000 कदम चलने वाली लड़की कि मैं रोज 10,000 कदम चलूंगी, तो वो हमारा सबकॉन्शियस नहीं मानेगा। मतलब बात, हाँ, पॉसिबल। दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हमने इस जो इन्फिनाइट पावर हमारे अंदर है, मुझको लगता है वो, आई थिंक दिस पैराग्राफ रीड नहीं किया है अभी ना। हाँ चलो हम पढ़ लेते हैं। हाँ, कौन? हाँ, वो उनका चला गया नेटवर्क, वो फिर से ज्वाइन कर लेती हैं। तो मैं साइंटिफिक प्रेयर इज अ रीड जी। जी हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। बुक दिख रही है आपको? लैपटॉप, मैंने एक्चुअली लैपटॉप खोला हुआ है दूसरी जगह ना। ठीक है, श्योर श्योर। वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे Wonders इफेक्टिवली। happen when you pray effectively. Scientific prayer is the harmonious interaction of these conscious and subconscious levels of mind, scientifically directed for a specific purpose. This book will teach you the scientific way to tap the realm of infinite power within you, enabling you to get what you really want in life. You desire a happier, fuller, and richer life. Begin to use this miracle working power and smooth your way in daily affairs, solve business problems, and bring harmony in family relationships. Be sure that you read this book several times. The many chapters will show you how this wonderful power works and how you can draw out the hidden inspiration and wisdom that is within you. Learn the simple techniques of impressing the subconscious mind. Follow the new scientific way in tapping the infinite storehouse. Read this book carefully, earnestly, and lovingly. Prove to yourself the amazing way it can help you. It could be, and I believe it will be, the turning point of your life. ये तो आप बता ही चुके हो सब कुछ, अभी भी बताया, राइट? तो शुड आई कंटिन्यू? शुड आई हाँ कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। ये हम पैराग्राफ पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमको अगर अपनी हैप्पियर और फुलर और रिचर लाइफ जीनी है तो इस बुक को हमको कई बार पढ़ना होगा और बहुत प्यार और सहज भाव से पढ़ना होगा। राइट। एवरीबडी praised. Do you know how to pray effectively? How long is it since you prayed as a part of your everyday activities? In an emergency, in time of danger or trouble, in illness, and when death lurks, prayers pour forth your own and friends. Just read your daily newspaper. It is reported that prayers are being offered up all over the nation for a child stricken with a so called incurable ailment, for peace among nations, for a group of miners tapped in a flooded mine. Later, it is reported that when rescued, the miners said that they prayed while waiting for rescue. An airplane pilot says that he prayed as he made a successful emergency landing. Certainly, prayer is an ever present help in time of trouble. But you do not have to wait for trouble to make prayer an integral and constructive part of your life. The dramatic answers to prayer
make headlines and are the subject of testimonies to the effectiveness of prayer. What of the many humble prayers of children? The simple thanksgiving of grace at the table daily. The faithful devotions wherein the individual seeks only communication with God. My work with people has made it necessary for me to study the various approaches to prayer. I have experienced the power of prayer in my own life, and I have talked and worked with many people who also have enjoyed the help of prayer. The problem usually is how to tell others how to pray. People who are in trouble have difficulty in thinking and acting reasonably. They need an easy formula to follow, an obviously workable pattern that is simple and specific. Often, they must be led to approach the emergency. Would you like to explain, Bitti ji, so much? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस मतलब इसमें ये पहली बात तो ये है कि जैसे हमको मैजिक बुक कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, हम देखो बचपन से प्रेयर कर रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हमको प्रेयर के लिए मतलब हमने मुसीबत की इंतजार नहीं करना कि वो आएगी तो हम प्रेयर करेंगे। हमको प्रेयर करनी ही है, रूटीन में करनी है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं या जैसे हम रूटीन में करते हैं, तो प्रेयर्स आंसर होती हैं। जैसे वो माइनर्स जब एक बार फ्लड की माइन में फंस गए थे, तो वहां पे कैसे वहां पे वो एरोप्लेन आया और उस वहां पे उनको रेस्क्यू किया गया, जबकि उन लोगों ने तो वो लोग तो वैसे ही प्रेयर करते थे। वो मतलब जो हमारे रिलीजियस एफिलिएशन, क्योंकि ये देखो ये जोसेफ मर्फी का बैकग्राउंड में बताती हूँ कि जैसे फ्लोरेंस कोवेल शिन एक चर्च में प्रीचर थी, वैसे ही फ्लोरेंस जोसेफ मर्फी भी चर्च में ही प्रीचर थे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमारे जो रिलीजियस चीजें बनी हुई हैं, जो क्लासेस हम स्पेशली अटेंड करते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो वो यही बोल रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है लाइफ में कि हमारे को प्रेयर्स करनी ही है। हर पर्सन को, एवरीबडी हैज टू प्रे। हमारी प्रेयर्स इफेक्टिव कब होती हैं? हाँ ठीक है, जब मुसीबत आती है तो वो इफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि तब क्या होता है, हमारी फीलिंग्स के साथ निकलती है, हमारे अंदर से हम। नहीं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि हम स्कूल जाते हैं तो हमको थैंक्स गिविंग प्रेयर कराई जाती हैं, स्कूल्स में कराई जाती हैं, खाना खाते समय कहा जाता है प्रेयर कर लो, और मतलब कहीं लोग बैठते हैं तो भजन कीर्तन, मतलब हम इसको इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब ये अलग अलग तरीके हैं प्रेयर करने के। और वो कहते हैं मैंने अपने जीवन में भी पावर ऑफ प्रेयर को बहुत महसूस किया है, बहुत लोगों से बात की है कि प्रेयर उनके लिए काम करती है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आने के बाद हम प्रेयर करना सीख जाते हैं, कैसे करनी है। वैसे तो क्या होता है कि मैं पहले भी कई बार कहती हूँ कि हम लोग ना, हमको जो श्लोक या जो पाठ या जो प्रेयर सिखाई गई है, हम उनको ना सिर्फ एक एक जो रट्टा मारा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं, दिस इज नॉट प्रेयर। वो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेयर है वो क्या है? कम्युनिकेशन विद गॉड। क्या आप भगवान से बात कर रहे हैं? क्या आप उनसे जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं? People who have trouble with difficulty in thinking and acting reasonably, they need to easy formula to follow, obviously workable pattern, it is simple and specific, often they must let to approach in emergency। तो वो ज्यादातर लोग क्या होता है कि जब इमरजेंसी होती है तभी प्रेयर्स करते हैं, मतलब वही ना, जैसे हम लोग कबीर के उनके दोहे पढ़ते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, तो ये असल सच बात ही यही है कि हम जैसे दुख आता है हमको प्रेयर्स याद आती हैं और हमको भगवान से कम्युनिकेशन करना याद आता है, तब हम उससे बोलते हैं हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो हमको। वो यही कहना चाहते हैं कि प्रेयर्स काम करती हैं, पर हमेशा प्रेयर करिए, लेकिन ये हमेशा कहना कि मेरी प्रेयर को आंसर नहीं होता या मेरे को नहीं करनी आती, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रेयर करते रहिए, लेकिन जो दुख है वो आपको प्रेयर करना सिखाता है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सिखाती हैं कि आपको कैसे प्रेयर करनी है। और कुछ शशि, और आप जो समझो, इसीलिए मैंने बोला है कि प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया कि किसी
हर बंदे का पर्सपेक्टिव समझने का अलग होता है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोल सकता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म मुझे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं ना कि बस हमने अगर कुछ, जैसे हम डेली रूटीन में अगर हमने कोई प्रेयर बनाई है तो वो प्रेयर गाते रहते हैं, चाहे मन में हमारे कुछ भी चलता रहे। वही बट ना, इन वही, हाँ, फैक्ट बिल्कुल। जब हम मन से प्रेयर करते हैं तो हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गॉड का ही ध्यान आता है। फिर हमें ये घर का ये सब कुछ भी नहीं याद आएगा। अगर जैसे मैं आरती कर रही हूँ या किसी 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 घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं कि ये मंत्रास पढ़ने हैं या ये श्लोक पढ़ने हैं, या आपकी जैसे गुरबानी है, तो वो गुरबानी तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि मन में कुछ और चल रहा होता है। तो इसी बात पे ना मुझे एक स्टोरी याद आई। एक स्टोरी है कि एक गुरु नानक जी देव की स्टोरी है कि जब गुरु नानक देव जी यंग थे तो तब ये हिंदू मुसलमानों के ना बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। तो जो बहुत बड़ा एक मुस्लिम बादशाह था, उसने आके बोला इनको, गुरु नानक देव जी को, कि आपको मेरे साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी वरना मैं आपका सिर कलम कर दूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है, मैं पढ़ूंगा तेरे साथ नमाज। तो फिर वो उनको अपने महल लेके जाते हैं और फिर वो प्रेयर करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सारे जैसे सिर झुकाते हैं तो वो भी सिर झुका रहे होते हैं, पर गुरु नानक देव जी सिर नहीं झुकाते। तो जब नमाज खत्म हो जाती है तो फिर वो ऊपर उठते हैं, बादशाह बोलते हैं आपने तो नमाज पढ़ी ही नहीं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं तो आपने भी नमाज नहीं पढ़ी, आप तो सर झुका के सिर्फ ये सोच रहे थे कि मैंने लड़ाई करके अब इस देश को अपने इसमें मिलाना है। बिल्कुल। तो आपने भी नमाज कहाँ पढ़ी? तो फिर ऐसे बहुत वो सारे बादशाह इंसिडेंट समझ हैं गुरु गए। नानक देव जी के, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बार आते हैं हमारी जो है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं साखी, उसमें 2-3 जगह आता है। एक बार आता है कि उसने कहा था तो बोलता तुम तो वहां जाके घोड़े बेच रहे थे, मतलब उसने कोई बहुत अच्छे हॉर्सेस, उस समय तो लोग वॉर के लिए हॉर्सेस परचेज करते थे, कहते तू तो मुल्तान गया हुआ था घोड़े खरीदने, तू प्रेयर कहाँ कर रहा था? बिकॉज वो तो जानते थे ना, वो तो खुद गॉड थे, तो उनको पता था इसके मन में ये चल रहा है, कहने को ये हाँ, नमाज पढ़ रहा है। तो बिल्कुल यही बादशाह कहते हैं कि मतलब वो समझ जाते हैं कि इनमें तो कोई पावर ही अलग है, फिर वो यस, उनको जाने देते हैं वहां से। हाँ, तो इसमें भी यही है कि जब हम प्रेयर करें तो हम पूरी तरह गॉड से कनेक्ट होकर उनको अपनी मन की बात चाहे सिंपल वे में कहें, पर उनसे अपना कनेक्शन बिठाएं हम डेली। हम्म, बस मुझे ये है कि फॉर्मूला हमें अपना, हर किसी का अलग अलग होता है। अब ये बुक जो है ना कुछ शायद हमें यूनिकनेस सिखाना चाहती है कि हम कैसे यस, करें, है ना? तो नेक्स्ट शुड आई रीड? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Unique feature of this book. The unique feature of this book is its down to earth practicality. Here you are presented with simple usable techniques and formulas which you can easily apply in your workday world. I have taught these simple processes to men and women all over the world, and recently over 1,000 men and women of all religious affiliations attended a special class in LOS Angeles, where I presented the highlights of what is offered in the pages of this book. Many came from distances of those 200 miles for each class lesson. The special feature of this book will appeal to you because they show you why oftentimes you get the opposites of what you prayed for and reveal to you the reasons why. People have asked me in all parts of the world and thousands of times, why is it I have prayed and prayed but got no answer? In this book, you will find the reasons for this common complaint. The many ways of impressing the subconscious mind and getting the right answers make this an extraordinarily valuable book and an ever present help in the times of trouble. तो ये यूनिकनेस है बुक की। हाँ जी बेटी जी, आप एक्सप्लेन कर लीजिए। अनम्यूट। सॉरी, कीर्ति जी आप करिए, कोई बात नहीं, आपने तो की हुई है एक बारी बुक, आप बोलिए, हाँ कीर्ति जी, आप बोल दीजिए। आप बोलिए। आप ही बोलिए आप। जी, आपने तो एक बार पढ़ाई हुई है ना, तो मैं कह रही थी। चलिए, ये बुक हमें
प्रैक्टिकल है ये। जैसे कि हमने अभी मैंने एक बोला या शशि ने बोला कि हम एक रटे रटाए आरती या रटे रटाए श्लोक बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। वो प्रैक्टिकल बात क्या है, ये बुक हमें बताएगी कि हमको प्रेयर को या अपनी बात को सिंपल यूजेबल टेक्निक से कैसे करना है। वो फॉर्मूला देगी जो इस दुनिया में लागू हो सकता हो। ये हमें सिखाएगी सिंपल प्रोसेस उस लोग सारे मेन और वुमेन दुनिया के, कि कैसे तुम लोगों को प्रेयर करनी है। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि एक लॉस एंजलिस में एक रिलीजियस एफिलिएशन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहां पे उन्होंने बताया कि मतलब वहां पे बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने इस बुक के बारे में वहां पे बताया। तो वहां पे हजारों लोगों का एक ही जवाब था कि हम प्रेयर करते हैं और करते ही करते जाते हैं, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको इस कॉमन कंप्लेन का इस बुक में जवाब देने वाला हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कई तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं और सही जवाब पा सकते हैं। इसीलिए ये बुक इस मामले में आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल सिद्ध होगी, खासकर जब आप मुसीबत में हैं। यहाँ पे कहने का भाव यही है कि हमारी ये तो बात हम खुद ही मानते हैं, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम प्रेयर करते हैं। जब हम फीलिंग के साथ करते हैं तो हमारी प्रेयर भगवान सुनता है, और जब हम फीलिंग के साथ नहीं, मतलब हमारा फीलिंग क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो है। जब लेकिन हाँ ये भी बोलते हैं कि फीलिंग कौन सी होनी चाहिए, वो तो खैर हम लोग पावर और मैजिक बुक में पढ़ते हैं कि फीलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स बिलीफ वाली। लेकिन हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमारा ये सॉल्व हो जाए, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत नेगेटिव जोन में है, तो भी प्रेयर्स काम नहीं करती, बिकॉज आपको भरोसा ही नहीं है। आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, वहां जाके बोलते हो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है, मैं एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। लेकिन घर आने के बाद आप उतनी बुरी तरह उस बच्चे को डांट रहे हो, आपको दिख रहा है वो पढ़ नहीं रहा, और आपके मन में बार बार आ रहा है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। फिर आपकी प्रेयर किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिर आपको भगवान पे भरोसा ही नहीं है। या तो आप मान लीजिए कि मैंने जो बोला है वो हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे आके बच्चे को उस तरह से ट्रीट कीजिए कि नहीं, वहां प्रेयर करिए, अब यहाँ पे एफर्ट्स करने हैं, बस काम हो जाएगा। मतलब एफर्ट्स और प्रेयर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। हमारे एफर्ट्स होते हैं दूसरी तरफ और प्रेयर होती है दूसरी तरफ। मेरा ये प्लॉट बिक जाए, लेकिन फिर भी डाउट है मन में कि पता नहीं बिकेगा कि नहीं, पता नहीं सही भाव मिलेगा कि नहीं, पता नहीं सही पर्सन मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं, मेरी सेल अच्छी हो जाए, लेकिन हम डाउट लेके जाते हैं। ये अगर हमने भगवान के आगे प्रेयर करी है, हम धूप बत्ती करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, और हम ऐसे ही सीधे बंट, मुझे पता है कि मेरा बहुत अच्छा सेल होने वाला है, या जो भी होता है उसके लिए हम ग्रेटफुल हो कि हम बोले वाह जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो कीर्ति मैम ने बोला कि हमारे दोनों दिमाग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो ही प्रेयर्स आंसर करेंगे। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड प्रेयर कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है चल चल झूठे, कुछ नहीं होना तेरे से। ये बात है। तो प्रेयर ये यूनिक फीचर है, वो हमको बताएंगे हाउ टू प्रे। राइट, एग्जैक्टली सही बोला आपने कि सबकी कॉमन कंप्लेंट होती है कि हम प्रेयर तो करते हैं लेकिन हमारे को रिजल्ट नहीं आते, है ना। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रे करने के लिए, बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये बुक हमें वही सिखाने वाली है, वही तरीके बताने वाली है, वही टूल्स बताने वाली है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे इम्प्रेस करें कि हमें राइट आंसर्स राइट समय पर मिले। तो ये आगे हम वही सीखने वाले हैं। तो शुड आई कंटिन्यू? कीर्ति जी आपने कुछ ऐड करना है? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद करती। ठीक या है, किसी और ने भी कुछ ऐड करना है किसी तो और ने भी प्लीज, ये मैंने इंटरैक्टिव सेशन रखा है यहाँ पे। बिल्कुल मत सोचिए कि हम यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वी ऑल आर फ्रेंड्स। हम लोग इस बुक को बेहतर समझना, देखिए
मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। आप एक मूवी देखने गए, हम 4 लोग गए, हम सारे गए सपोज, सबने बाहर निकल के अलग रिव्यू देना है। आप एक बुके को देखती हैं, किसी को रेड पसंद आ रहा है, किसी को व्हाइट पसंद आ रहा है। आप किसी कपड़े को देखते हैं, किसी की ड्रेस देखते हैं, मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ठीक ठाक है, दूसरा कह रहा है कलर अच्छा है, डिजाइन मतलब एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं है। तो मैं इसलिए ये बुक पढ़ रही हूँ कि हम पांचों लोग इस बुक के बारे में जब बोलेंगे, 10 लोग, तो कुछ नया निकल के आएगा। मतलब सबका पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी कुछ बोलना चाहता है, प्लीज प्लीज बिल्कुल बिंदास बोलिए। ये प्लेटफॉर्म हम सबका है, ये मेरा या कीर्ति जी का या शशि का या नीतू का किसी एक पर्सन का नहीं है। हमको डिस्कस करना है, हमको हमको अपने अंदर जितना हम डिस्कस करेंगे ना उतना ही हमको बुक खत्म करने की जल्दी नहीं है कि हमको ये 1 महीने में बुक खत्म करनी है, भले 2 महीने लग जाए, पर हमको एब्जॉर्ब करना है। जब हम बोलते हैं ना, जिस कहानी को हम ज्यादा करते हैं ना वो अंदर बैठती है। तो वो पहले तो पिक्चरों की कहानियां, पड़ोसियों की कहानियां, लोगों की बुराइयां, वो हमने बहुत कर ली। अब हम ये वाली कहानी कर लें तो मेरे को लगता है हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एम आई राइट? Right, right, absolutely right. I do every Absolutely right. या Right, तो Dev. अगर कोई कुछ कहना चाहता है इस पैराग्राफ के बाद तो प्लीज कह सकता है, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दी उसमें आपने सारा कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें नहीं, कुछ ये नहीं बात होती। आप, मैंने नहीं, कल नहीं। भी बोला था कि तुम बुक को मत लो। जैसे अब इसने गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल दिया, आई एम वेरी हैप्पी। हम लोगों ने, मैंने आपको बोला कि आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल निकाल के बताओ ना कि हाँ आपने मैं सबकॉन्शियस वही माइंड को कैसे यूज किया, कभी मुझे लग कहीं रहा था किया हो या समझा हो। जैसे मैंने यही समझा है, मैं, मेरे घर में ना मेरी मम्मा, मेरी बहनें, मेरा भाई, सब लोग बहुत ज्यादा पाठ पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे घर बहुत रिलीजियस है, बट मैं नहीं हूं ऐसी। क्योंकि मेरी ये थ्योरी है कि रटे रटाए पाठ करने से कुछ नहीं होता, मुझे तो 1 to 1 करना है। मैं हाँ मेडिटेशन करके खुश हूँ, मैं चलते फिरते मुझे थैंक यू कर लिया, कुछ भी कर लिया मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो 2 मिनट बात की ना, मुझे 20 मिनट नहीं करनी, मुझे 2 मिनट ठीक है, मैं ऐसी हूँ। यहाँ, हाँ तो मैं यहाँ बिट्टी यही जी, आपको कहना चाहती हूँ। यहाँ बिट्टी जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे आपने कहा आपके घर पे सारे बहुत यानी रिलीजियस है, जैसे मेरे घर भी है, मेरी मम्मी थी, सब थी रिलीजियस होने के बावजूद भी 24/7 वो लोग हमेशा टेंशन में रहते थे। क्या यस, होगा, कैसे होगा, वो बच्चा उधर गया, अरे इन्होंने ये नहीं लाया, वहां का पैसा नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी इतनी चल रही है, अगले महीने क्या होगा। इन्हें ये क्या था, या तो प्रेयर करेंगे, भगवान के पास बैठे हुए हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती चल रही है, दिए में तेल क्यों इतना है, अच्छा वो क्यों ऐसा किया, इधर ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो ये प्रेयर नहीं होती है। अभी हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ये ग्रेटिट्यूड ही हमारी कितनी बड़ी प्रेयर है। आज क्या हम 10-10 घंटा भगवान के पास बैठते हैं, या हम कंटिन्यू कभी जा रहे हैं मंदिर में जाके, उल्टा यानी भगवान के नाम से भी ज्यादा बस भगवान का नाम, यस थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू प्रभु, बस इतना ही चल रहा है। और देखिए लाइफ कितनी इजी, कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल करेक्ट। एकदम हल्की फुल्की लाइफ जीने का मजा आ रहा है। ये बुक जब जब से ये बुक्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं, हम जीना सीखे हैं। मैं तो 35 ईयर्स के बाद लाइफ क्या होती है, कैसे जीते, ये मैंने सीखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके लिए भगवान के पास 2-2 घंटा जाके बैठो, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल यही हमें बहुत सारी चीजें यानी फॉर्मूलाज इतने सारे दिए हैं, स्टोरीज दी हुई है, हर एक लाइफ मैं का आपको एग्जाम्पल क्यों, ट्रू मैंने दिया हुआ ये है। आपको, मैंने नीतू, आपने बोला ना बुक एक्सप्लेन, वो इंग्लिश की हिंदी तो आप भी पढ़ लोगे, मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं है। मुझे आपको कोई इंग्लिश की मैं बुक एग्जाम थोड़ी लेना है आपका, मैंने कि मैं आपको पेपर नहीं, दूंगी आप कि मेरा आप इसमें पॉइंट से। नहीं समझे। आप हाँ, मेरा पॉइंट नहीं समझे थे दी नहीं मैं आपको एक्चुअली। जैसे जैसे अभी देखो कीर्ति जी ने, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है और बहुत जगह होता है, ठीक है। ज्यादातर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में वेडनेसडे या थर्सडे को चौपाहा होता है, जो कि दोपहर को 12 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक होता है। और उस समय इतना कुछ ज्यादा वहां पे संगत होती है, इतनी ज्यादा संगत होती है कि ऑलमोस्ट ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। मतलब यहाँ पे तो है, लुधियाना में, अमृतसर में, बहुत शहरों में है यहाँ पे, बाकी मुझे दूसरी सिटीज का नहीं पता। मैं रोज गुरुद्वारे जाती हूँ, रोज, वेडनेसडे को नहीं जाती। मेरे को किसी ने एक दिन पूछा, आप बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा जाते हो? मैंने कहा हाँ जाती हूँ। चौपाए में भी जाती हूँ? मैंने कहा बस उस दिन ही नहीं जाती, क्योंकि मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि मुझे लगता है कि भीड़ चाल है, प्लस
वो गुरुद्वारा सेंटर ऑफ द सिटी में है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में। तुम कितना ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हो, इधर स्कूल है, इधर हॉस्पिटल है, वहां पे ची 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 हॉर्न बज रहे हैं, बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो रही है, किसी को हॉस्टल जाना है। कम से कम 4 हॉस्टल्स हैं वहां पे, एक आई हॉस्टल है, एक हार्ट हॉस्टल है, एक मल्टी स्पेशलिटी है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं वहां पे। मतलब आई फील सो बैड अबाउट पीपल कि तुम लोग लोग मतलब प्रेयर किसके लिए कर रहे हो जब तुम इतनी बॉदरेशन कर रहे हो आसपास। दिस इज माई थॉट। भले मैं गलत हूं, मेरे को लोग, मेरी मेरी मम्मी भी डांटतेगी इस बात के लिए, मुझे पता है, बट मैं कहती हूँ मैं वेडनेसडे को छोड़ के मैं हर दिन चली जाऊंगी, मैं वेडनेसडे नहीं जाऊंगी। मुझे वो धक्का मार के मत्था टेकना नहीं पसंद है, मुझे जाना है, मुझे बैठ के टिक के देख के बात करनी है भगवान से। ये Because मेरा थॉट है। are the because we are the loveliest child of the God. हाँ, यस। हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, उससे तो हम मिल ही नहीं पाते। राजकुमारियों इधर की से तरह धक्का खाया, जाते उधर से धक्का खाया, और बस आ गए। मतलब वो ये है कि इरिटेशन लेके आ गए, तो मैं बोलती मैं जाना ही नहीं, मैं घर में बैठ के पाठ कर लूंगी अगर मुझे करना है, और नहीं तो फिर वही है कि हम नहीं भी करेंगे, हमको पता है हमारा थैंक यू का चाप चल रहा है, दैट्स इट। तो दिस इज, बिल्कुल आई वांट बिल्कुल। टू से, दिस इज इन माय सबकॉन्शियस माइंड। ये मेरा यही है, मैं यही बोल रही हूँ कि हम प्रैक्टिकलिटी देखें बुक की, कि हम कैसे आप यूज करते हो अपनी लाइफ में। जो आपने अभी स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था ना स्टडी वाला, कि हम प्रेयर तो कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, है ना, और घर पे आके उसको डांट रहे हैं, तो ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं प्रे करा मेरी बेटी के लिए कि मुझे इतना वो करे, अच्छे से स्टडी करे। उसके बाद बट अंदर होता था कि नहीं यार, कर तो रही नहीं है। बट फिर मैं अपने आप को प्रैक्टिकली बोलती थी, नहीं मैंने प्रे किया ना तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट इंटरनल कहीं ना कहीं पे वो फीलिंग, डीप फीलिंग थी कि नहीं, नहीं कर रही है। जब बच्चा सामने नहीं कर रहा तो एक फेथ वैसा उधर स्ट्रेंथन ज्यादा था मेरा। तो उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया उसका वैसा जैसा मैं चाह रही थी। पर नेक्स्ट टाइम आई प्रेड सिंसियरली, और मैंने बिलीव करा ना, मैंने अपने लिए प्रे करा कि मेरा फेथ स्ट्रेंथन हो, मेरा फोकस यस जो मैं यस, प्रेयर कर रही हूँ ना, सही बात। दैट शुड इनसाइड मी ना, तो वो मेरा हाँ, फेथ बिलीव ये स्ट्रांग हो। बस तो अब मैंने वो जो पढ़ी वो अगला, रियलाइज है। अगली बात वो यही कह रहे हैं, व्हाट डू यू बिलीव। अब हम यही इसीलिए मैंने पढ़ने वाले इसीलिए नहीं बोल रही थी मैं, क्योंकि मैंने हेडिंग पढ़ ली थी नहीं तो नहीं, इट वाज आपने पढ़ी, क्लियर। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल फैक्ट है ये, कि आप अगर अगर विश्वास, अगर आप गए हो और अगर आपने, क्योंकि मेरी एक ये भी थॉट है कि हम भगवान से सिर्फ मांगने जाते हैं, हम भगवान को अब, लेकिन जब से इस जर्नी में आए अब हम भगवान को थैंक यू करने जाते हैं थैंक यू कि आज करने का दिन जाते बहुत हैं। अच्छा निकला है, थैंक यू, बहुत अच्छा था, है और ना। आज मेरी शेयरिंग भी है इसी चीज को लेके, बिलीव को लेके ही। एक तो मैं दो चीजें शेयर करना चाहूंगी, जो भी हम शेयर करेंगे उसमें भी व्हाट डू यू बिलीव में वो आता है। एक तो हमारी प्रेयर हमें रियलाइज होनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, और हम उस पर ट्रस्ट कितना कर रहे हैं। और एक जब बिल्कुल। हम प्रेयर करते हैं तो हमारा हार्ट, माइंड एंड बॉडी वो सिंक में होने चाहिए, क्योंकि जब तीनों अलाइंड हो गए तो हमारी प्रेयर हम ऑटोमेटिकली फुलफिल होनी है। सो आज की मेरी शेयरिंग ये है कि मुझे घर पे, मैं ऑफिस में थी एंड 51 हो गए थे मुझे। आई वॉज ऑन द बाइक, और टाइम था मुझे घर अर्जेंटली 5 तक मुझे पहुंचना था एनी हाउ। एंड मैंने बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, मुझे, मैं 5 बजे घर पे पहुंच गई हूँ आराम से, और मैं प्रसाद बना रही हूँ घर पे। और मुझे बनाना वगैरह भी लेने थे जिसमें मुझे टाइम ओवर हो सकता था, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं 5 बजे शॉप शाप घर पे पहुंच गई हूँ, प्रसाद भी बना रही हूँ आराम से। एंड मुझे बनानास लेके जाने थे तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ। एंड रास्ते में ही मुझे, ऑन द वे ही मुझे बनाना वाले भैया मिल गए, रास्ते में ही मैंने उनसे लिया। 5 से पहले ही मैं घर पे पहुंच गई, जो मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगने थे, तो मैं 10 मिनट से पहले ही पहुंच गई। सो दिस इज व्हाट आई, बस मैंने यूनिवर्स में आई सरेंडर किया। स्पोकन आउट कि नहीं मुझे ये चाहिए। फाइनल रिजल्ट क्या था, मैंने उस पर फोकस करा, दैट आई फोकस, नहीं आई हैव टू बी एट होम बाय 5। सो आई रीच्ड एट होम। सो मुझे इतना अच्छा लगा वो फील के कि यूनिवर्स इज सो सपोर्टिव। हाँ, तो बस यही यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, यही है, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको खुद पे, अगर आप बोल रहे हो ना मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैंने मैंने शायद यूट्यूब, सॉरी, शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे, कि मैंने कम से कम 2 साल, 1-2 साल पहले लिखा था कि माई आइडियल वेट इज 58। लेकिन मैं उसके लिए एफर्ट्स भी कर रही थी, हेल्दी खा रही थी, वॉक भी कर रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में इस तरह का प्लान का आना, उसका मुझे फॉलो करना और मेरा वेट एग्जैक्ट 58 होना, ये सब
सब पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता था कि ये होगा, जबकि मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, पर वो इतना स्ट्रिक्ट था कि 64 से वो टस से मस नहीं होता था। कई साल हो गए थे, मैं सोचती थी यार बिल्कुल कितना कितना कम खाऊं, कितना ये परहेज करूं कि कुछ नहीं खा रही, कभी ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं खाया, वॉक रोज कर रही हूँ, बट कुछ नहीं होता था। बट फिर भगवान ने कोई ना कोई आपको मिला देगा ना पर्सन, क्योंकि आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। आपने मैं चाहा कि आप 5 बजे घर आना चाहते हो, यूनिवर्स ने बोला चल मैं तेरे साथ हूँ। दिस इज यस, द पॉइंट। और यस। आपकी एज को लेके मैं वेट को लेके मैं शेयर करना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस कि मैं अपने आप को दो चीजें, एक तो एज को लेके था कि आई लुक 24 ईयर्स, मेरा यही था कि हाँ आई एम 24 ईयर्स। और मुझे, मैं 10 साल या 20 साल ऐसे कुछ करके मैं 10 साल छोटी हूँ ऐसे बोलती थी, अपने आप को ही बोलती थी कि हाँ मैं 10 साल छोटी हूँ, आई एम 24 ईयर्स। और मेरे को जो भी मिलता था, दे लिटरली सेड कि नहीं आप अपनी एक्चुअल एज छुपा रहे हो, आप इतनी एज के नहीं हो। मैं क्या भाई मैं एक्चुअल एज बता रही हूँ, बोले नहीं आप इतने के नहीं लगते, आप 24 के ही लगते हो। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, नहीं एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग यस, वर्क्स, बिल्कुल। एंड वेट में मैं अपने मेरा आप को ये मुझे बोलती हूँ, मैं हाँ बोलती जी। हूँ कि मैं जो भी खाती हूँ ना, मैं वो मुझे मतलब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती हूँ, मैं कुछ भी खा लूं मैं फिट एंड हम्म, फाइन रहती हूँ। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि उसको पानी भी लगता है, मैंने उसे बोला ये मत बोला कर, तो नहीं ये बोला बोला था। कर मैं जो, और उसका वेट बढ़ता है और मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ भी खा लूं मैं फिट रहती हूँ, तो मैं सब कुछ खाती हूँ तो मैं फिट नहीं रहती हूँ। मेरा तो ना बढ़ता था ना घटता था, मैं उसके लिए थोड़ी स्टक थी। बट हम्म, मेरी लाइफ में वो टर्न आया और मेरे साथ सब कुछ सही हो गया। वो फिर यूनिवर्स, क्योंकि मैं सिंक में थी तो उसने मुझे रास्ता दिखा दिया yes, कि हाँ ऐसे नहीं, रास्ता ऐसे बिल्कुल करना दिखता है, पड़ेगा। यस। रास्ता नीतू जी, बिल्कुल मुझे ना दिखता है। आपसे एक थैंक रिक्वेस्ट यू। करनी है, आप अपना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लो, क्योंकि आपका फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ मैजिकल हेल्दी नीतू रॉय दिख रहा है। तो आप अपना कैमरा थोड़ा इस तरह से करो कि आपका फेस भी नजर आए ना। हाँ हाँ, चलो पढ़ो, एक अब दिख एक रहा है, पैराग्राफ और करते हैं अब फिर। दिख रहा टाइम हो गया है ना। यस। What do you believe? It is not the thing believed in that brings an answer to man's prayer. The answer to prayer results when the individual's subconscious mind responds to the mental picture or thought in his mind. The law of belief is operating in all religion of the world and is the reason why they are physio, physio साइकोलॉजिकली। psychologically true. The Buddhists and Christians, the Muslim and the Hebrew, all may get answers to their prayers, not because of the particular creed, religion, affiliation, ritual, ceremony, formula, lit, क्या लिखा हुआ है ये liturgy, लिटर्जी, लिटर्जी हाँ। लिटर्जी। incantation, हाँ, incantation, इनकेंटेशन। incantation, sacrifices or offerings, but solely because of belief or mental acceptance and receptivity about that for which they pray. The law of life is the law of belief, and the belief could be summed up very briefly as a thought in your mind. As a man thinks, feels, and believes, so is the condition of his mind, body, and circumstances. A technique, a methodology based on an understanding of what you are doing and why you are doing. It will help you to bring about a subconscious embodiment of all the good things of life. Essentially, answered prayer is the realization of your heart's desire. इस बारे में हम वैसे बहुत बार बात कर ही चुके हैं, और यही बात है कि कोई भी कास्ट हो, क्लास हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, रिचुअल हो, कोई भी सेरेमनी हो, घंटियां बजाओ, आरती करो, पाठ करो, नमाज पढ़ो, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी प्रेयर्स आंसर करती हैं बिलीफ से। आपका भरोसा कितना है? कोई भी धर्म हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी चैंटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी मेंटल एक्सेप्टेंस, जो आपका दिमाग मान लेता है और आप भरोसा कर लेते हो कि मेरी प्रेयर सुनी जाएगी, तो वो सुनी जाती है। टोटली बिकॉज ऑफ बिलीफ, सिर्फ भरोसा। उस
मतलब यूनिवर्स पर, परमात्मा पर, गॉड पर, जो भी कहे, जो इंसान सोचता है, जो महसूस करता है और जिस पे भरोसा करता है, एज अ मैन थिंक्स, फील्स, बिलीव्स, सो द कंडीशन ऑफ हिज माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस, वैसे ही हमारी माइंड हो जाती है, वैसे ही बॉडी और वैसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं और आपकी प्रेयर आंसर हो जाती है। हम जो चाहते हैं, तभी तो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हम कहीं जाना चाहते हैं, अपनी ड्रेस बनवाना चाहते हैं, मैंने सोचा, मैंने फील किया, मैंने उस पर भरोसा किया, मैं मार्केट गई और मेरे सारे काम हो गए। आज नीतू जी ने सोचा कि मुझे घर जाके प्रसाद बनाना है, उनका प्रसाद भी बना, उनको केले वाला भी मिला और टाइम उनको ट्रैफिक भी नहीं मिला। तो वो क्योंकि थिंक, फील एंड बिलीव, उससे कंडीशन हो गई माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब माइंड बॉडी तो मेरा है, पर सर्कमस्टांसेस बाहर के भी अलाइन हो जाते हैं उस समय के लिए। एंड ये टेक्निक जो मेथडोलॉजी है, ये हमें बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम सब कुछ, देखिए मैंने कल जो बताया था कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमको कौन सी मेथड यूज करनी है कि मुझे गुड थिंग्स इन लाइफ लाना है। क्योंकि हम जो बुरा बुरा सोचते हैं तो वो भी तो हो ही जाता है ना। कई बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे सीढ़ियां उतर रहे होते हैं ना, हम जरूर टोकेंगे, बेटा आराम से गिर मत जाना। जब छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं या बहुत छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको डर नहीं लगता, उसको तकलीफ नहीं होती, हमको बहुत होती है, पकड़ो 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 गिर ना जाए, ऐसा। तो ये हम लोग खुद ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड भगवान ने दे दिया है, अब आप उसमें गुड थिंग्स कैसे लाओगे और कैसे वो आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइफ में गुड थिंग्स लाने के लिए। क्योंकि जो प्रेयर है वो आंसर क्यों होगी, जब आपकी हार्ट की डिजायर उतनी स्ट्रांग होगी। मतलब वही बात है, फीलिंग्स, फीलिंग्स, आप क्या फीलिंग्स दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो कि नेगेटिव दे रहे हो। ये एक्सप्लेनेशन है इस पैराग्राफ का। बाकी इसके बारे में कोई कुछ और कहना चाहता है तो बता सकता है, फिर हाँ, हम मुझे बात ये करते कहना हैं। है कि जैसे इन्होंने कहा है ना, व्हाट डू यू बिलीव, तो जैसे ही अब प्रार्थना आपका विश्वास है इसलिए पूरी पूरी हुई, ये जो हम बोलते हैं ना, इससे भी ज्यादा उस प्रार्थना के साथ जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जुड़ जाएगा, आपका वो माइंड सोचेगा। जैसे अभी बहुत से लोग वो है अने कि साईं बाबा जैसे शिरडी जाने पर उनका काम 100% होना ही होना है। उनका वो स्ट्रांग बिलीव है, उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो फिट हो चुका है कि मैं जाऊंगी, मत्था टेक के आऊंगी, मेरा काम तो होना ही होना है। ऐसे मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जो साईं पे विश्वास करते हैं, उस जगह की पॉजिटिविटी उनको बहुत कुछ देती है। तो इसी तरह है कि जब अगर मैंने कहा है कि मेरा ये काम होने वाला है और होगा ही, तो मैं उसी बात पे यस होगा, मैं वहां जाऊंगी, फिर होने के बाद ना ऐसा करूंगी, वहां ना ऐसा होगा, फिर मुझे ये लाना है घर के लिए, मैं ये पर्दे खरीदूंगी। तो ये सब मेरा, अब मैं मेरे माइंड के साथ क्या काम कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना के साथ साथ मैं वो सोच रही हूँ, बार बार विजुलाइज कर रही हूँ, बार बार हर चीजों को देख रही हूँ। तो मुझे वही 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 दिखाई दिया, है ना। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको कुछ चैलेंज था हेल्थ का, तो मुझे चाहिए थे पपीते के पत्ते। तो पहले दिन तो मुझे पपीता का पत्ता कहीं नहीं दिया मिला, मैं इसको उसको फोन करके मुझे सोसाइटी गेट पे एक मिला। नेक्स्ट डे मैं और एक जगह ऐसे ढूंढते ढूंढते गई, एक घर पे मिला रो हाउस में। और तीसरे दिन तो मैं जहां जाऊं रास्ते में पपीते के छोटे छोटे झाड़ 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 झाड़। वो है ना कि मैं जिधर जाऊं मुझे वही दिखने लगा। तो ये होता है। राइट। प्रीति दी आप अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे किसी ब्रांड के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, आज मैंने पहली बार शशि से कोई ब्रांड के बारे में सुना कि इस ब्रांड की ये चीज आती है, अभी तक मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मुझे वो जगह जगह दिखेगी क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में आ गई है वो। फिर अगर मैं किसी चीज को चेस करना, मतलब कोई, मैं किसी चीज के बारे में सुनूंगी, फिर वो मैं उसको चेस करूंगी, वो मुझे चेस करेगी, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तभी वो बोल रहा है कि हमने कल भी जैसे इन्होंने बोला साईं बाबा वाला, तो सेम हमने बोला था कि कई लोगों को विश्वास होता है कि वो उस दरगाह पे जाके ठीक होगा। ये जो वहां पे रश है ना, वो भेड़ चाल है। बस मुझे यही कहना है, जाओ तो भरोसे से जाओ, आपका काम उस दरगाह पे जाके होगा, भले वो आप किसी भी रिलीजन के हो। लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो गया था तो मैं जा रहा हूं, तो नहीं होगा। दिस इज आई वॉन्ट टू से।
और दी मैं एक Thank चीज और ऐड करना चाहूंगी। मेरे को लगता है कि अगर आपके अंदर फीलिंग इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वहां पे जाओ, आप घर बैठे बैठे भी अपने आप को वहां पे इमेजिन कर ऑफ लो, कोर्स नहीं तो हाँ, आपकी वो भी हो वो जाता तो है। हम मान ही रहे ना, वो तो हम लोग तो जाते ही नहीं है। देखो हम तो अपनी बात नहीं कर रहे, वो कोई ही बात कर रही है। वो बुक ये बोल रही है your prayer get answers because of your, not because of your creed, religion, affiliation, ritual, ceremony, formula, liturgy, incantation, sacrifice and offerings. It is solely because of your belief, your mental acceptance, your receptivity for which you pray. ये लाइन है बस जो मेन समझने वाली है कि आपकी इसमें वही कहा है, धर्म, कर्म कांड, ये जो करते हैं ना, बलि, या तो फिर आप भजन, तंत्र, मंत्र, तो काम ऐसा थोड़ी कि नहीं होते थे, लोगों के सच में होते होंगे, क्योंकि जिसने बहुत भरोसे से बलि दी उसका होगा। लेकिन वो रिचुअल बना लेना कि नहीं अब तो इसी से ही होगा, तभी वो प्रोसेस बंद किया गया ना, कि ये तो बिना मतलब कि कर्मकांड बन गया। कर्म कांड में नहीं फंसना, भरोसे से ठीक है आप कुछ भी करो, आप धागा काला बांध लो, नो इश्यूज, यस यस, बांध लो, भरोसे पर से। भरोसा रखिए, हम्म। भरोसा रखिए। अब यस यस। सबने देखो एविल आई के सबने ब्रेसलेट, सबने ही गले में, और सबने, क्योंकि बस वो एक फैशन हो गया, वो ट्रेंड हो, मतलब यहाँ आजकल में उसको ये भेड़ चाल नहीं बोलेंगे, हम ट्रेंड बोलेंगे, हम एक रिफाइंड लैंग्वेज में, कि हर चीज ट्रेंड बन जाती है। इस पर मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे जी फॉर बोलिए। एग्जांपल मैं क्रिस्टल बहुत, मुझे पता नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। और तो जैसे अगर मैंने कहा यार मैंने ये वाला क्रिस्टल ने मेरे पैसे के लिए लिया है, सपोज मैं एक फ्रेंड को बोल रही हूँ, वो बोलेगी यार कीर्ति ने खरीदा, उससे तो पैसा आएगा, चल मैं भी खरीद लेती, जबकि उसका विश्वास नहीं है, बट वो लाएगी क्यों, कीर्ति ने लाया है। पर उसको पता नहीं फिर वो इफेक्ट दिखेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे दिल से हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बिल्कुल, लेती हूँ, श्योर श्योर, तो नहीं मुझे नहीं देखो, नेचुरल 101% उसका ऑफ कोर्स, जो मिलना है वो बिल्कुल मिलने वाला है। बट बिल्कुल उसे ठीक। मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो। वो यही हो रहा है ना, देखो तभी आज की तारीख में क्रिस्टल वाले या दूसरे लोग भी जो बहुत सारी चीजें लेके बेच रहे हैं, सिर्फ लोग देखा देखी खरीद रहे हैं। अगर आपको भरोसा है आप एंजल्स पे विश्वास करिए, आपको भरोसा है आप फुल मून पे विश्वास करिए, आपको भरोसा है आप सन की प्रेयर करिए, लेकिन आप भरोसा रखिए। सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, वो नहीं ठीक। बस दिस इज द फाइनल लाइन, कि आपको जो करना है पूरे भरोसे के साथ करिए, भले मून को प्रेयर करिए, भले सन को करिए, भले पीपल को करिए, भले तुलसी को करिए, पर विश्वास के साथ करिए। नहीं इसलिए यस। कि उस वो करती है इसलिए मैं कर लूं, दिस इज नॉट द वे। प्रेयर करने का हम्म। ये तरीका नहीं है। तो यही इसी पैराग्राफ में यही था कि बिलीव कर रहे हो तो करो, बिलीफ ने काम करना है, तुम्हारे ये जो सैक्रिफाइस, एफिलिएशन, रिचुअल्स हैं काम नहीं करना। अब हम बाकी कल पढ़ेंगे 2 पैराग्राफ, यस। बाकी देखते हैं कि लेसन 2 कल हम लेसन 1 शुरू कर पाए, नहीं तो फिर 2 पैराग्राफ तो हम कल करेंगे लास्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का थैंक यू। आने के लिए, बस इसी तरह जुड़ते रहिए, और भी लोगों को अगर बता सकते हैं तो प्लीज जोड़िए, तो और भी ज्यादा मजा आएगा फिर, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू। यू दी। कीर्ति, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। रितु, थैंक यू शशि, दिल से थैंक थैंक यू सुप्रिया। कल और 2 अच्छे रितु एग्जाम्पल दूंगी, अभी मुझे याद है पर मैं कल यू। बताऊंगी। हाँ रियल लाइफ। ओके ओके, हमको बिल्कुल रियल लाइफ ही बिल्कुल। चाहिए, हमको हाँ। बुक्स में से नहीं चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। आकर्षिता, थैंक यू पूजा, थैंक यू। थैंक यू।